Okay, thank you so much. Sure. So this is the very first chapter of our book and our syllabus also. So today we will be having an idea in detail about what is database and what is database management systems. Then we will see some of the important applications, then some other concepts related with DBMS. So this is the outline for this particular chapter where we will see why the database is required, why it is so important, then what are the various data models, then the major important thing, the relational models which we have to study in this entire semester, then database design, storage manager, query processing, and transaction manager. So these are the content which we have to cover in this entire chapter. Okay, so last time we have discussed the definition of database first. So all of you, almost all of you have answered it correctly. So once again, I'm just discussing it. So database is a collection of interrelated data stored in a structured manner. And as I have gave you some examples also, if I am storing the record of all the students of IT 31 batch in an Excel file, so that is also a database where I'm storing the roll number, the name, age, or suppose the CGPA up to first year or second semester. So that is a kind of database. Similarly, if I am having a paper pen with me and I am going to store the date of birth, the birthdays of my 10 friends, so that is also a kind of database. So I think you have now got an idea of a database. So it is a collection of interrelated data organized in a structured manner. And then we discussed database management system. So database, either we can create database manually using pen, paper, or file, or using Excel sheet. And the second option is to create or to maintain the database with the help of computers. So if we are using computers, then definitely we need some softwares to manipulate or to manage the database. So DBMS हम किसको बोलते हैं? It is a system software which is used to manage the databases, and management simply means to create database and to manipulate databases. And you can see here also they have given the definition. So database को इन्होंने सबसे पहले define किया है. So database is a collection of interrelated data, whereas DBMS is a set of programs. That means it is a software to access the data. So whatever data lies inside my database, so to access that data, to modify that data, I require a software that is known as DBMS. And in the last lecture, we have also discussed there are so many different DBMS available. There are so many different softwares available that can do the task. So some of the names, as I have mentioned, is MySQL, Oracle, Microsoft Access, SQL Server, MongoDB, SQLite. So there are so many options. It's totally up to users or up to organizations which DBMS they want to use for their database. And database management system कुछ इस तरह का होना चाहिए that it should be both convenient and efficient to use. तो सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो easily use हो सके, कुछ ऐसा environment provide करे जो convenient हो, जो easy हो, as well as efficient भी हो. Now, I hope the definition of these two terms are very much clear to you. So database is a collection of interrelated data, whereas DBMS is a software or it is a system which is used to manage the databases. And now you can see some of the very interesting applications of database. तो भाई मैं पहले से ही बार-बार बोल रहा हूँ कि database is almost everywhere around us nowadays. So one of the biggest and the largest application of database is banking. So banking सब लोगों को पता है. We used to have accounts in different bank. We used to do transactions. So each and every transaction, either we are depositing money or we are withdrawing money, each and everything is recorded, each and everything is stored in the form of database.
Then if you are going to reserve your airplane ticket or your train ticket, so all of you must be knowing that एक reservation chart बनता है where the details of the passengers are generated. So that is also a kind of database, and that database is maintained for each and every train or each and every flight which is being considered. Another interesting example, as we have discussed also, is related with universities. So in the case of university, we have here web kiosk, which is the example of a kind of a database where we used to have the record of all the students who are studying here, and we can have different information for the students, like saving their roll number, their name, their branch, their year, their CGPA, their attendance record. So each and everything is nothing other than databases. Similarly, sales, for sales purpose, like customers, products, purchases. So you all are nowadays doing online shopping a lot. So you must be knowing that the companies used to maintain a record if they are selling, suppose, a book. So how many number of copies are there of that particular book in their database, and which copies sold on which particular date by which customer. So every product has a product ID. So for each product there is a database, a table exists. And similarly for online retailers, as you all know, Amazon, Flipkart, they are the big companies of e-commerce. So definitely you can assume how large and complex their database can be. And some other applications are there, like in manufacturing, database is created, as well as for human resources, like employee record in an organization or in any MNC, and their salaries and some other information. So now you can have an idea about this thing, the applications of database, that almost everything around us is a kind of database. If you are doing any transaction, that is also a DBMS kind of thing. If you are reserving any train ticket or plane ticket, even if you are booking any movie ticket, so that is also a kind of database will be generated for that particular movie hall, how many seats are available, which seat is booked by which particular person. So each and every data is created. And now you can see databases can be very small also, and as well as it can be very large and complex also. So I think I have gave you so many examples by which you can assume, if I am just creating the record of IT 31 or 32 batch students, so 60 students will be there, easily manageable in an Excel file also. But think of having a 2000 student record. Then even if we combine all the students of JUIT, JIIT and JU Anup Shahar, so definitely उतना ही database का record हमारा increase होता जाएगा, database large होता जाएगा, database complex होता जाएगा. And last line simply says databases touch all aspects of our lives. So this is what I am saying from the very last lecture, that database is almost everywhere. So this is the simplest example to understand the database. So कल IT 31 batch की lab में भी मैंने इसको detail में discuss किया था. So IT 32 batch students were not there. So let's discuss it once again. So suppose we are creating any database for JUIT for our university. So very first thing is to identify the important components or important entities for any university. So definitely students are most important asset or most important entities in any university. Then faculty members, then there are non-teaching staff. Other than this, we have a library where we used to have a large number of books. Then we used to have hostels, then we used to have different departments, then we used to have, suppose, the vehicle information of that university. So what exactly database is? If I am creating a database, if I am creating a university database, so in that university database, I will create a table separately for all the students. I will create a table separately for all the faculty members. I will create a separate table for all the non-teaching staff. I will create a separate table for library where we will store all the record or the details of all the books. And suppose we are having one more table for department. So एक database के अंदर it can be
even only one table, or it can be hundreds of tables. So all that constitutes our database. So that's why we are saying again and again that database is a collection of interrelated data. तो अब यहाँ पर डेटा क्या हो गया, यहाँ पर टेबल्स को हम डेटा बोल रहे हैं. तो यूनिवर्सिटी एक डेटाबेस है, एक हायरार्की समझो, सबसे टॉप पर एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, उसके नीचे 5 अलग अलग टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक फैकल्टी के लिए, एक नॉन टीचिंग के लिए, एक लाइब्रेरी के लिए, और एक लास्ट टेबल है हमारा डिपार्टमेंट के लिए. नाउ दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा and how they are interrelated. All those data in the database, sorry, all those data in the tables belongs to the same university. तो अगर वो students का जो table है उसके अंदर जो students का data है, they all belongs to JUIT. Similarly, अगर हमारे पास faculty members का table है तो उनके अंदर जितने भी faculty members का record है वो सारे JUIT के faculty members हैं. Similarly, books जो भी हम information वहाँ show कर रहे हैं books वाले table में या library वाले table में, they all belongs to the books which are there in our university, and department, whatever departments are running in our university. So that's why we always say that database is a collection of interrelated data. Now, student table, faculty table, non-teaching staff table, department table, and the library table, they all are interrelated because they all belongs to the same university, that is JUIT. So this is the simplest example to understand the definition of database once again. तो मैंने आपको एक बार फिर से बहुत ही easy way में डेटाबेस की डेफिनेशन को क्लियर किया है. तो एक डेटाबेस के अंदर hundreds of tables भी हो सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स कि मेरी एप्लीकेशन क्या है और कितनी कॉम्प्लेक्स है. तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया कि एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हम क्रिएट किए और उस डेटाबेस के अंदर हमने 5 अलग अलग टेबल्स को बनाया है. सो दैट टोटली इज डेटाबेस, एंड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा. तो यहाँ पर डेटा मीन्स टेबल, बिकॉज टेबल के अंदर क्या स्टोर है, डेटा. So this is the easiest way to understand the definition. And now you can see उस डेटाबेस के अंदर सपोज एक स्टूडेंट का टेबल है, इंस्ट्रक्टर मीन या फैकल्टी मेंबर्स का है, कोर्सेज का टेबल बन सकता है, और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम उसमें न्यू रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, कुछ अपडेशन करनी हो. सो दैट इज ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. And in the early days, database applications were built directly on top of the file system. तो जब तक DBMS का concept नहीं आया था, जब तक हमारे पास MySQL या Oracle नहीं थी, although they are very old, so we just directly used to manage the things either manually or using some file systems. Now there are so many disadvantages of using file systems to store the data. So now you can see, अगर मैं Excel file बना रहा हूँ, so there can be data redundancy and inconsistency. If suppose 3 different people are working on the same file, or they just used to create their own Excel file, तो हो सकता है कि सबका Excel file create करने का अपना method हो. किसी ने roll number को first column बनाया हो, किसी ने name को first column बनाया हो, and हो सकता है कि 4 अलग अलग लोग अगर एक ही डेटा पर काम कर रहे हो तो वो 4 अलग अलग Excel फाइल को यूज कर रहे हो. सो मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल्स, यानी कि एक ही डेटा सबके काम का है लेकिन सभी लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग Excel फाइल जनरेट की है टू वर्क अपॉन दैट. सो देयर कैन बी duplication of data as well as redundancies there. Then difficulty accessing the data. So for each time हो सकता है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें हर टाइम कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस या कमांड देनी पड़े. डेटा आइसोलेशन हो सकता है मैं डेटा को एक्सेल फाइल में मेंटेन करूं, सेकंड पर्सन उसको वर्ड फाइल में मेंटेन करे, टेबल वहां पर जनरेट करके. सो इट्स टोटली एन इंडिविजुअल चॉइस. डेटा इज सेम बट the method or the way of saving the data is totally maybe totally different for different person. इंटेग्रिटी क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट. सो एटॉमिसिटी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो ट्रांजैक्शन में यूज होती है. तो भाई एटॉमिसिटी सिंपल सी एक बात बोलती है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो या तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन पार्शियली एग्जीक्यूट होगी या पार्शियली कमिट होगी. तो इसका बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल जब हम ट्रांजैक्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे
if you are transferring 5,000 from your account to your friend's account, तो या तो वो complete 5,000 ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, वहां पर ऐड होंगे, या फिर वो नहीं होंगे इन द केस द ट्रांजैक्शन फेल्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 5,000 अमाउंट एंटर किया तो 3,000 चले गए और बाकी 2,000 आपके अकाउंट में रह गए, या बाकी 2,000 बीच में नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। सो दिस इज एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट। सो ये atomicity and concurrency possible नहीं होता in the case if we are using simple file system, but with the help of database management system we can control each and everything, and this is what the beauty of DBMS is. And lastly, security problems is there. सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स लाइक अगर मेरे पास एक एक्सेल फाइल है उसमें एम्प्लॉय की सैलरी का भी एक कॉलम है, and we do not want to share the salary of employees with all the persons who are accessing that particular Excel file, so we do not have any option for that. But in the case of DBMS we can provide security to our data. जिस particular user को मुझे जो data represent कराना है, only that particular data will be shown to that individual user. Rest data can be hidden from that particular user. So these are some of the disadvantages which the earlier system or which the file systems used to have, and DBMS provides solutions to all the above problem. So that's why we use database management system, we use MySQL, we use Oracle or any DBMS, because इन सारी problems का solution हमें एक ही software को use करने से मिल जाता है, so it can be any DBMS. Now next important interesting topic is levels of abstraction. So इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. There are 3 different levels of abstraction in the case of database management system, और इसको हम 3 schema architecture भी बोलते हैं DBMS के केस में, और 3 schema architecture सारे जितने भी database system हैं सबके लिए exist करता है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है यहाँ पर, there are 3 different levels of abstraction. So 3 different levels of abstraction exist. Very first is physical level, which is also known as internal level or internal schema. Second category is logical level. Logical level is also known as conceptual level or conceptual schema. And the last level of abstraction is view level, and view level is also known as external schema. तो ये अलग अलग levels of abstraction हैं, तो ये क्या है और क्यों है, let's discuss that, and after that we will just finish the today's class. So ये diagram सबसे easy है to understand the things. So now you can see, as I have just explained you, that there are 3 different levels of abstraction. Very first is known as physical level. तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में जो ये फिजिकल लेवल है ये सबसे नीचे है, यानी कि जो मेरी 3rd लेवल है, अगर मैं स्टार्टिंग से टॉप से बात करूं तो फिजिकल लेवल इज एट द बॉटम, और मिडल में हमारे पास लॉजिकल लेवल है जिसको मैं कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा भी बोल रहा हूँ, एंड सबसे टॉप पर हमारे पास है व्यू लेवल जिसे हम एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं। तो चलो पहले एक बार देखते हैं ये है क्या, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर दीज वेरियस डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, और इसे DBMS में 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट स्कीमास, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा यहाँ बोल सकते हो आप। सो सबसे पहले फिजिकल लेवल सिर्फ स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करता है। फिजिकल लेवल हमें बताता है डिस्क्राइब्स हाउ आवर रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। तो मेरा जो डेटा है या डेटाबेस है वो एग्जैक्टली कहाँ पर स्टोर्ड है, दैट इज द टास्क ऑफ फिजिकल लेवल व्हिच इज आल्सो नोन एज इंटरनल लेवल। So internal level has internal schema that describes the physical storage structure of database, and it uses a physical data model and describes the complete details of data storage. So actual में मेरा data कहाँ store है, so this physical level deals with that particular thing. Second is logical level, which is also known as conceptual schema. So logical level, it describes the data stored in database and the relationship among the data. So basically conceptual level में या logical level, it has conceptual schema that describes the structure of the entire database for a group of users, and it hides the details of physical storage structure. तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर सपोज
मेरे डेटाबेस के अंदर 5 अलग अलग टेबल्स बनने हैं, तो ये उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। स्ट्रक्चर मींस स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स की डेटा टाइप क्या होगी। सिमिलरली अगर मैंने फैकल्टी वाला एक टेबल बनाया है तो उस फैकल्टी वाले टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बनेंगे और उन कॉलम्स की क्या क्या डेटा टाइप होगी। सो दिस इज ऑल is about this logical level that describes the structure of data to be stored in the database. And last level of abstraction is view level. So this is at the top layer. तो इसको डिस्कस करते हैं, ये टॉप पर क्यों है। तो इसे हम एक्सटर्नल लेवल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं। So it includes the number of external schemas or user views, and it hides the details of data types, and these views can also hide the information डिपेंडिंग अपॉन द सिक्योरिटी पर्पस। तो आप यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मेरा फिजिकल लेवल है जिसे मैं इंटरनल स्कीमा बोल रहा हूँ वो सबसे बॉटम में है। देन इन बिटवीन जो है मेरा लॉजिकल लेवल है जिसे मैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोलता हूँ, और जो सबसे टॉप पर है वो है मेरा व्यू लेवल जिसे मैं एक्सटर्नल स्कीमा बोल रहा हूँ। और अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर व्यू 1, व्यू 2 और व्यू n है, यानी कि डिफरेंट व्यूज क्रिएट किए गए हैं। तो जरा इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि क्या है। तो ये नवाते की बुक में बहुत ही अच्छा दे रखा है। सो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए इसे पहले से ही ओपन करके दे रखा है। तो यहाँ पर ये है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। तो यहाँ डायग्राम आपको ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पीपीटी में जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ 3 लेवल्स गिवन हैं, लेकिन एक्चुअल स्टोरी हमें यहाँ से समझ आएगी। सो व्हाई वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड यूजर्स यानी कि जो हम लोग हैं, हम कहाँ पर हैं, हम सबसे टॉप पर हैं। और जो एक्चुअल में डेटा है यानी कि जो मेरा डेटाबेस है वो सबसे बॉटम में है। Between users and the actual data we have 3 different layers, we have 3 different level। तो अब आपको जरा ध्यान से समझ आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर जो यूजर्स हैं उसको एक्सेस तो करना है ये डेटा, बिकॉज वो डेटा उसी का है, लेकिन हम यूजर को कभी भी ओरिजिनल डेटा इन कंप्लीट मैनर शो नहीं करते। यूजर को अगर ओरिजिनल डेटा देखना है तो उसे कुछ एक्सटर्नल लेवल पर ही विजिबल होगा, लेकिन हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, सबसे बॉटम पर। तो इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझो। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स, फिजिकल लेवल जिसे हम इंटरनल स्कीमा बोलते हैं, लॉजिकल लेवल जिसे हम कंसेप्चुअल स्कीमा बोलते हैं, एंड लास्ट इज व्यू लेवल जिसे हम एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं। तो सबसे ध्यान से जो समझने की बात ये है कि जो यूजर है, हम लोग हैं, वो सबसे टॉप पर है, लेकिन जो डेटा है वो सबसे बॉटम पर है। और यूजर यानी कि हमारे बीच में और ओरिजिनल जहाँ डेटा है उसके बीच में 3 अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे नीचे आएगा इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल। दैट मीन्स ये डील करेगा कि एक्चुअल में जो डेटा है वो कहाँ पर स्टोर है। अगर मैं अभी बात करूं आपके जीमेल अकाउंट की, आपके फेसबुक अकाउंट की और इंस्टाग्राम अकाउंट, यू यूज टू अपलोड लॉट ऑफ फोटोज और लॉट ऑफ वीडियोज ऑन डेली बेसिस, बट यू डू नॉट एक्चुअली नो कि जो आपका डेटा है वो इन रियल एग्जिस्ट कहाँ पर कर रहा है। क्या आपका डेटा यूएसए में मार्क जकरबर्ग के पास पड़ा है, या जो आप फाइल्स या फोटोज अपलोड कर रहे हैं वो इंडिया में ही कहीं है। वी डू नॉट नो दैट। एज वेल एज वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, हमें डेफिनेटली इमेजेस दिखती हैं लेकिन हमें वो नहीं पता। रीजन क्या है, हम यहाँ पर हैं, दिस इज द एंड यूजर and the original data is here exactly, and in between we have 3 different layers or 3 different levels। तो जो सबसे बॉटम पर जो लेवल है फिजिकल लेवल जिसे हम इंटरनल स्कीमा बोल रहे हैं, सो इट डील्स विद फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा और डेटाबेस। एक्चुअल में डेटा कहाँ पर स्टोर है वी डू नॉट नो, यूजर को नहीं पता, लेकिन वो किसका काम है, इंटरनल लेवल का काम है, फिजिकल लेवल का काम है। नाउ कंसेप्चुअल स्कीमा की बात करें, लॉजिकल लेवल की बात करें, मेरे डेटाबेस के अंदर यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, उसके अंदर 5 अलग अलग टेबल्स हैं। उन टेबल्स के नेम क्या हैं और उन टेबल्स के कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनकी डेटा टाइप क्या है, तो भाई ये सब कहाँ का काम है। दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल लेवल विच इज ऑल्सो नोन एज कंसेप्चुअल स्कीमा।
एंड यूजर को क्या विजिबल होता है, यूजर को ना हम एक्चुअल लोकेशन बताते, फिजिकल स्टोरेज कहाँ पर है डेटा या डेटाबेस की, ना यूजर को ये पता होता कि कितने टेबल्स बने हैं और उन टेबल का जो स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कितने कॉलम्स हैं या कितनी डेटा टाइप्स हैं, वो यूजर को नहीं पता। यूजर को एक्चुअली में क्या विजिबल होता है जो हम उसे विजिबल कराना चाहें। सो दैट इज ऑल अबाउट व्यू लेवल और एक्सटर्नल स्कीमा। तो मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल यहाँ आप लोगों को देता हूँ जिससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल लेवल क्या चीज़ है। तो अगर मैं आपके वेब कियोस्क की बात करूं, तो इफ़ यू आर लॉग इन योर वेब कियोस्क एज योर स्टूडेंट, तो आपको कुछ डिफरेंट व्यू विजिबल होगा। और अगर मैं एज अ फैकल्टी अपने वेब कियोस्क को लॉग इन करूंगा, तो मुझे जो वेब कियोस्क में जो कुछ जो भी विजिबल होगा वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। लाइक मेरे पास कुछ उस तरह की ऑप्शन आएगी जिसमें मैं आप लोगों की अटेंडेंस को मार्क कर सकता हूँ, बट स्टूडेंट के अकाउंट में वो कभी भी विजिबल नहीं होगा। सिमिलरली मैं आप लोगों के मार्क्स अपलोड कर सकता हूँ, तो वो कंपोनेंट सिर्फ मुझे व्यू होगा एंड आप लोगों को वो कंपोनेंट विजिबल नहीं होगा। सो दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल। सो डिफरेंट यूजर्स के लिए हम डिफरेंट व्यूज जनरेट करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि उस यूजर को हमें डेटा बेस का कितना पार्ट शो करना है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिजाइनर। तो आप यहाँ जरा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास हमेशा किसी भी डेटाबेस सिस्टम के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पीपल आर देयर। द वेरी फर्स्ट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सबसे टॉप हायरार्की का पर्सन है जो ओवरऑल डिजाइन या प्लान करेगा अबाउट द डेटाबेस। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, इफ JUIT wants to have web kiosks, so JUIT will concern with any company organization that will create the database or that will create the web kiosk for JUIT. उसके बाद conceptual schema पर जो काम होता है they are done by the database designer. तो जो इंटरनल स्कीमा का काम है कि कहाँ पर स्टोर होगा, दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर नोन एज DBA। एंड कंसेप्चुअल स्कीमा पर जो काम होगा दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस डिजाइनर्स, DBD। सो जो भी डेटाबेस डिजाइनर होंगे दे विल, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें बताएगा कि एक यूनिवर्सिटी को ये एक वेब कियोस्क की रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर एक स्टूडेंट का टेबल बनाओ, एक फैकल्टी का टेबल बनाओ, एक मार्क्स का टेबल बनाओ, एक लाइब्रेरी का टेबल बनाओ। सो दिस इज ऑल विच इज डन बाय database designer, and once each and everything is decided कि कितने tables होंगे, सब tables में क्या data types होगी, then this is the task of front end users, जो लोग web developers हैं, जो लोग websites या PHP पर काम करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि उसको हमें एग्जैक्टली कैसी लुक देनी है, हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द थिंग, एक्चुअल थिंग टू द यूजर। बिकॉज यूजर ने सिर्फ यही एक्सटर्नल लेवल यानी कि व्यू लेवल को ही व्यू करना है, यूजर से ये भी हिडन है, कंसेप्चुअल स्कीमा भी हिडन है और इंटरनल स्कीमा भी हिडन है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। यूजर सबसे टॉप पर है, ओरिजिनल डेटा सबसे बॉटम पर है, इन बिटवीन वी हैव 3 डिफरेंट लेवल्स, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। और यूजर सिर्फ व्यू लेवल से ही डील करता है। इंटरनल लेवल यानी कि फिजिकल लेवल को भी हम हाइड रखते हैं, यानी कि हम यूजर को कभी भी ये नहीं पता होता कि ओरिजिनल डेटा कहाँ पर स्टोर है, एज वेल एज यूजर को ये नहीं पता होता कि कितने टेबल्स बने हुए हैं पूरे डेटाबेस के अंदर। अगर 100 टेबल हैं तो उसे जो सिर्फ जिससे उससे डील करना है सिर्फ उतने ही टेबल्स के बारे में पता होगा, कौन से टेबल पर क्या कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, क्या डेटा टाइप है, क्या रिस्ट्रिक्शन है। दैट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंड यूजर्स। तो ये सारा काम डेटाबेस डिजाइनर यहाँ पर काम करते हैं। और फाइनली यहाँ पर हमारे वेब डेवलपर्स काम करते हैं, जो फाइनली सब कुछ डिसाइड होने के बाद, एक स्कीमा बनने के बाद, सब कुछ डिजाइन होने के बाद फाइनलाइज करेंगे कि हम उसे किस वे में यूजर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर विच इज गिवन वेरी ब्यूटीफुली इन दिस नवाथे बुक। तो आप लोग यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर इन्होंने डिस्कस भी किया हुआ है कि इंटरनल स्कीमा हमारा फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर से डील करता है, कंसेप्चुअल लेवल जो है हमारा वो स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस से डील करेगा, और एक्सटर्नल और व्यू लेवल हमें बताएगा कि हमें कौन से यूजर को क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, तो यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन या लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात हुई। तो एब्स्ट्रैक्शन का भी सिंपल मीनिंग है दैट वी डू नॉट वांट टू
represent entire thing to the user. So that's why we have this hierarchy. So now you can assume यूजर सबसे टॉप पर है और जो हमारे ओरिजिनल डेटा है वो सबसे बॉटम पर है, और हम यूजर को सिर्फ उतना ही डेटा या इंफॉर्मेशन व्यू कराएंगे जितना हम चाहते हैं. सो दिस इज data abstraction. So that's why we have a word here, levels of abstraction. So abstraction means information or data can be hidden from the user depending upon the requirement. Okay, so after that we have some 2-3 terms, and let me discuss that, and after that we will finish the things. So now you can see we have instances and schemas. तो लॉजिकल स्कीमा को मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि मैं इन सारे लेवल्स को स्कीमा भी बोल रहा हूँ. मैं फिर से बता देता हूँ आपको, फिजिकल लेवल को हम इंटरनल स्कीमा बोलते हैं, लॉजिकल लेवल को हम कंसेप्चुअल स्कीमा बोलते हैं, एंड व्यू लेवल को हम एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हैं. तो यहाँ पर फिर से वही टर्म आ गई, लॉजिकल स्कीमा. तो लॉजिकल स्कीमा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिडल लेवल विच इज ऑल्सो नोन एज कंसेप्चुअल लेवल. तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि दिस पर्टिकुलर level or schema, it describes the overall logical structure of the database. तो अगर मेरा यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, उसके अंदर कितने टेबल्स हैं, हर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम की क्या क्या डेटा टाइप है, ये सारा कुछ यहाँ डिसाइड होता है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है बैंक का. तो बैंक के अंदर कस्टमर्स एंड अकाउंट का अगर हम टेबल बनाएंगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, कौन से कस्टमर के कौन सा अकाउंट है. सिमिलरली अगर मैं यूनिवर्सिटी की डेटाबेस की बात करूं तो एक स्टूडेंट का टेबल है, एक कोर्स का टेबल है, या फिर सपोज डिपार्टमेंट का टेबल है. सो कौन सा स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट का है, सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लॉजिकल स्कीमा. देन यू कैन सी फिजिकल स्कीमा मीन्स सबसे लास्ट फिजिकल लेवल विच totally deals with the overall physical storage structure of the database. एक नई टर्म यहाँ पे आई है, आपको दिख रही है, इंस्टेंस. तो भाई इंस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. तो अगर मैं अभी JUIT के डेटाबेस को चेक करूं, उस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल को चेक करूं, तो इस टाइम पर जितने स्टूडेंट्स करंटली स्टडी कर रहे हैं JUIT में, तो उन सबका मुझे रिकॉर्ड दिखेगा. तो at that particular time, whatever data is present inside the database or any particular table, that is known as instance. और अगर मैं एक साल बाद उस डेटाबेस को चेक करूंगा तो हो सकता है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो गया हो, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड उस टेबल में इंसर्ट हो गया हो. सो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एक इंस्टेंस हो जाएगा. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम डेटाबेस को व्यू कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्चुअल डेटा है दैट इज नोन एज इंस्टेंस. एंड द लास्ट टर्म इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. तो भाई यहाँ पर अभी तक हमने लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात की कि मेरे पास यूजर और ओरिजिनल डेटा के बीच में 3 अलग अलग लेवल्स हैं. तो बेसिकली पर्पस क्या है इस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का? द मेजर पर्पस इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या बोलता है कि अगर मैं अपने फिजिकल लेवल में कुछ भी चेंजेस करूं तो जो उससे अपर लेवल है यानी कि जो लॉजिकल लेवल है उस पर कुछ भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए. Data should be independent of each other. There should not be any effect. If we are making any changes to the physical level, then there should not be any effect in the logical level. So this is what physical data independence is: the ability to modify the physical schema without changing the logical schema. तो मैं physical level पर अगर कुछ changes कर रहा हूँ और वो effect ना करे logical level को, यानी कि मैं logical level में बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए अगर मैं फिजिकल लेवल में चेंजेस कर सकता हूं, सो दैट इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. फिजिकल लेवल इज ऑल अबाउट द स्टोरेज स्ट्रक्चर. तो अगर मेरा जो डेटाबेस है एक हार्ड डिस्क में स्टोर है, हार्ड डिस्क 1 में, और मेरे सिस्टम के अंदर सपोज 2 अलग अलग हार्ड डिस्क हैं. तो अगर मैं उस डेटा को सपोज यूनिवर्सिटी का ही डेटाबेस है, 5 टेबल्स बने हुए हैं, तो ओरिजिनली मेरा जो सारा डेटा है वो हार्ड डिस्क 1 में स्टोर है. If due to any reason, if I want to shift the entire data or database from hard disk 1 to hard disk 2, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ जैसे ही मैंने फिजिकल लेवल पर कुछ चेंजेस किए तो वो टेबल डिलीट हो जाएंगे या वो टेबल मॉडिफाई हो जाएंगे या उनमें से कुछ डेटा डिलीट हो जाए. सो दिस इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. अगर हम कुछ भी चेंजेस करें फिजिकल लेवल पर तो वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए लॉजिकल लेवल. So this is all about physical data independence, and this is all about today's lecture.
And in the next lecture, we will discuss various data models, and in detail, we will start relational model, which is the model in the form of tables, and we will learn how to deal with the different tables in a database. So this is all for today. Anyone having any doubt or any query from anything, feel free to ask.